Ami, that is quarrel. Ami, I want to say something to you. Ami, I decided to get married. Your God, Allah bless you. Ami, I decided to get married. And you know, Nana, impression of Rizuli is very good. Ami, that is quarrel. Ami, after marriage, I can't stay with you. I will stay with my What wife. is this, my son? Squirrel, Ami. Ami, don't feel bad, but try to understand now. You can't live with us. We have parents to stay at old age. What is this, my son? How many times do I have to believe it? That is squirrel. What is this? Squirrel, why are you not understanding? Now where are you going? What is this? 8:15 April 1975. Read it in the lovely son. Today my son turned 2 years old. I took him in bath. We was sitting together. Suddenly one squirrel came in front of us. My son asked me 21 times, what is this? And I answered 21 times. Very happy. I got my job to my son because I love my son more than anything else. Ami, are you really sorry? It's okay, beta. May Allah subhanahu wa ta'ala give you good life and keep you happy always. फिर भी मेरी ममता को ना समझ पाया तू वही है जिसने घर से निकाला मुझे. The way our parents have raised us in our childhood, in the same way we should support them in their old age. May Allah subhanahu wa ta'ala protect our parents and guide us to serve them in their old age. Jazakumullah.
देश की उन्नति लगे किसी चीज के मगर किसी में रहता हूँ, मगर किसी में रहता हूँ। कल का काम आज कर, आज का अभी करते नमाज बाजमात पढ़ने से 27 नमाजों का सवाब मिलेगा। नंबर 1, सूरह फातिहा पढ़ने से हर बीमारी से शिफा मिलेगी। नंबर 2, सुबह सूरह यासीन की तिलावत करने से दिन भर अल्लाह की मदद मिलेगी। नंबर 3, फज्र के बाद अल्लाह का जिक्र और 2 रकात इशराक की नमाज पढ़ने से दरमियानी मदद में अल्लाह की मदद मिलेगी। नंबर 4, फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने से दूसरी फर्ज नमाज तक अल्लाह की हिफाजत होगी। फज्र और असर के बाद अल्लाह का जिक्र करने से दरमियानी मदद में शैतान से हिफाजत होगी। नंबर 1, रात में सूरह वाक़िया की तिलावत करने से फक्र और वाक़े से हिफाजत होगी। नंबर 2, रात में सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों की तिलावत करने से हर बुराई से हिफाजत होगी। नंबर 3, रात में सूरह अल इमरान की आखिरी 3 आयतों की तिलावत करने से दिन भर की थकान का खात्मा होगा। नंबर 4, सोते वक्त तस्बीह फातिमा पढ़ने से रात भर नमाज का सवाब मिलेगा। नंबर 5, सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ने से सुबह होने तक शैतान
social media are the youngsters. Wake up in the morning and spit at the many blue screen in the hands of a sleepy mother, scrolling through the variety of pictures and videos to see what is going on in the life of those they know who like my post. Can he or she get over 100 likes for posting about his income? Social media has become a way to connect with people. We share our opinion on news events around the world. Some of the most popular social media sites include Facebook, WhatsApp, Twitter, Snapchat, and many more. Get set and be slash Twitter. The impact of the social media are the youngsters and the consequences. See one. Ha 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 ha. Hello my mother. I ran on friends called Facebook and I made a mistake. But I like third parties to access the personal data. Now let us see how the apps and the extreme use may might affect the health of children and the family boundaries. Scene 2. तुम सब लोग यहाँ जाते हो मेरे साथियों से देखो हेलो यार हाँ हाँ बोलो हाँ हाँ मैं सभी आया क्या है बेटा क्यों सता रही हो अभी नहीं आकर पढ़ाऊंगा कहाँ ना आकर पढ़ाऊंगा कहाँ ना आकर पढ़ाऊंगा हेलो क्या तुमने होमवर्क किया हाँ सच्ची तुमने नेट पे से देख सकती है हाँ चलो चलो मैं भी अब फोन करके सर्च करके करती हूँ यूट्यूब पे नया वीडियो अपलोड किया है चलो मैं भी देखती हूँ डॉक्टर साहब जल्दी आइए बताइए मेरी बेटी को क्या हो गया है
ask you few questions to make them separate, speak separately. अच्छा, answer me. अच्छा ये बताओ, क्लास में मैम को सबसे ज्यादा तंग कौन करता है? मैं तो नहीं करती, इसका पता नहीं। अच्छा, then क ख पढ़े हो? मैंने तो पढ़ा है, इसका पता नहीं। हेलो अरे मैम क्या तो तीनों स होते हैं, तीनों स अरेंज करके बताओ। सबसे पहले आता है तलबशा, उसके बाद आता है मदनशा, उसके बाद आता है गंजा। थप्पड़ कौन खाएगा सबसे ज्यादा तुझसे? मैं तो नहीं खाऊंगी, इसका पता नहीं। और मैम, आपके थप्पड़ से नहीं, आपकी नाराजगी और साइलेंस से डर लगता है। अच्छा, that's why you both making me feel irritated here. एक साथ बोल के मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। मैंने तो नहीं किया, इसका पता नहीं। एक नंबर के नोटंकी हो गया। मैं तो नहीं हूँ, इसका पता नहीं। और मैम, हम दोनों छोटे से, नन्हे से, प्यारे से बच्चे हैं। ऑडियंस, ये किस एंगल से आपको छोटे से, नन्हे से, प्यारे से बच्चे लग रहे हैं? मैं तो हूँ, इसका पता नहीं। You both are नौटंकीज। I'm living the mind. ऑडियंस, आप ही सुनिए इनकी बकबक। ये लोग तो मुझे पागल करके छोड़ेंगे। मैंने तो नहीं किया, इसका पता नहीं। नो शट अप, अब नहीं बोलोगे। ऑडियंस, आप ही संभालिए इन दोनों को। Sorry, ma'am. Greetings, greetings, and greetings everyone. Moving forward for the next performance. अब हम साथ में क्यों बोल रहे हैं? मैम तो चले गए। वैसे मैम को लेक्चर सुनने में बड़ा मजा आया। हाँ, सही कहा, बड़ा मजा आया। So audience, be ready for the next performance. Today is a day to celebrate grandparents and all the incredible things they do for their families. So to all the amazing grandparents out there, please
action. మోక్ష అనగా నైతిక విలువను యొక్క సందేశాన్ని మరియు మారుతున్న నేటి సమాజాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మనందరి కనులకు కనువిప్పు కలిగించడానికి చక్కటి ప్రదర్శనతో మన ముందుకి రాబోతున్నారు. అలా బయటకు వెళ్ళి చెప్పుకున్నాం పడతల్లి. चक्कर आ रही है हमारे. सामने से ले ले. అంట ఎక్కువ ఎందుకు చేసాము మరి? అబ్బా అమ్మ దోయ ఇది పాచిపోయిందమ్మా తినలేదు. హలో అన్నపూర్ణ వాళ్ళు చూడండి. ఒక ముస్లామిని ఆశ్రమంలో చేర్పించాలని అనుకున్నాం. తాను మా అమ్మాయిని అనాథలను మాత్రమే చేర్చుకుంటారా? సరే సోయా వాళ్ళు అనాథలను మాత్రమే చేర్చుకుంటారట. చెప్పండి, వేరే ఒకరికి ఫోన్ చేయండి. చేస్తాను. హలో కర్మమండలం ఒక ముస్లామిని మీ దగ్గర ఆశ్రమంలో చేర్పించాలనుకుంటున్నాం. ఆమెకు ఎవరు లేరండి. రేపు రామంటారా? సరే చెప్పండి. ఏం చెప్పాలో తెలియదు, అంతా నేనే చెప్పాలి. ఏంటి నాన్నమ్మని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నావు? నీకెందుకు నువ్వు చదువుకోపో. అమ్మా కొద్దిసేపు ఆగు.
Tuesday, we recite Tuesday's dua. Let's start. I'll recite you. Raise your hands for dua. Tuesday's dua. मिलने जुलने वाले दो स्वर वाक्य में दुआ। ऐ अल्लाह, हमारे तमाम दोस्त अहबाब को तमाम बुराइयों से बचाइए। अहले हिदायत जैसा अहले यकीन जैसा इखलास, अहले तौबा
नवा दोस्तों अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों ढूंढ लेंगे हमें शाहजहां दोस्तों होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों हम कदम हम ज़हन हम नवा दोस्तों अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों ढूंढ लेंगे हमें शाहजहां दोस्तों होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों मेरे जज्बों में कासिम की ललकार है मेरी पिटीकों की तलवार है मेरे जज्बों में कासिम की ललकार है मेरी पिटीकों की तलवार है मेरी हर सांस कर्ज़े आज़ाद दोस्तों मेरी हर सांस कर्ज़े आज़ाद दोस्तों हम ज़हन हम नवा दोस्तों अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों ढूंढ लेंगे हमें शाहजहां दोस्तों होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों मेरी नस्ल में कलमा है ईमान का हम पे हर लम्हा साया है कुर्बानी का मेरी नस्ल में कलमा है ईमान का हम पे हर लम्हा साया है कुर्बानी का हासिले इल्म हो बेकरार दोस्तों हासिले इल्म हो बेकरार दोस्तों हम ज़हन हम नवा दोस्तों अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों ढूंढ लेंगे हमें शाहजहां दोस्तों होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों तोड़ लाएंगे हम चांद तारों को भी होगी जब साथ में इल्म की रोशनी तोड़ लाएंगे हम चांद तारों को भी होगी जब साथ में इल्म की रोशनी तुम न करना ये वक्त ज़िया दोस्तों तुम न करना ये वक्त ज़िया दोस्तों हम ज़हन हम नवा दोस्तों अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों ढूंढ लेंगे हमें शाहजहां दोस्तों होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों आसमान तलक मेरी परवाज़ है पर्वतों पर मेरे हक की आवाज़ है आसमान तलक मेरी परवाज़ है पर्वतों पर मेरे हक की आवाज़ है हम सितारों के हैं राज़दां दोस्तों हम सितारों के हैं राज़दां दोस्तों हम ज़हन हम नवा दोस्तों अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों ढूंढ लेंगे हमें शाहजहां दोस्तों होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों इल्म की राह का अब सफर है शुरू खत्म होगी कभी इनकलाबे जुनून इल्म की राह का अब सफर है शुरू खत्म होगी कभी इनकलाबे जुनून कश्ती-ए इल्म के बाद दोस्तों कश्ती-ए इल्म के बाद दोस्तों हम ज़हन हम नवा दोस्तों अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों ढूंढ लेंगे हमें शाहजहां दोस्तों होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों नूर कायद की तुम ही तो तस्कीर हो ज़हन इक़बाल के तुम ही शाहीन हो नूर कायद की तुम ही तो तस्कीर हो ज़हन इक़बाल के तुम ही शाहीन हो निकाले वतन जावेदार दोस्तों निकाले वतन जावेदार दोस्तों हम ज़हन हम नवा दोस्तों अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों ढूंढ लेंगे हमें शाहजहां दोस्तों होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों हम कदम हम ज़हन हम नवा दोस्तों अपनी मिल्लत
कहकशां दोस्तों ढूंढ लेंगे हम ऐसा जहां दोस्तों होगी राहे अमल पुरअमां दोस्तों Saima, do you know in our school we recite when it says dua? No, I don't know. Let's recite dua. When it says dua. बड़े मर्तबा असातिज़ा वालिदैन के हक़ में दुआ है पढ़ाई वाले हमारे वालिदैन असातिज़ा बड़े बुजुर्गों को अपनी सलामती में रखिए अपनी उल्फत नसीब फरमा हमको उनसे दुआएं लेने वाला बना उनकी उम्र में इज्जत में रोजी में सेहत में खूब बरकत नसीब फरमा उनकी इताअत हमारे मुक़द्दर फरमा For our talented MSCs to present this kit based upon generation gap and the respect for parents and grandparents. Assalamualaikum. Good evening, students. Alaikum assalam. Good evening, sir. Now take a seat, students. Thank you, sir. Today you are friends. Let's take a topic. मेरे कहने दादा दादी और नाना नानी English medium writing. You know if you never were grandparents, practical should be made not in a book. Are you ready now? Yes, sir. Start writing. Stop writing. Time is over. I hope you are dressed properly. I get for by tomorrow. Thank you, sir. Yes, Camille. What happened to the little upset? Sir, I need to talk to you something important. But this class 7 our topic about मेरे प्यारे दादा दादी और नाना नानी and all those present writing here well. But when I checked the paper, I was What exactly is going to have written an essay? one check papers. This is actually more about it. We should talk about this going further. Okay, sir. क्लास में मोहित को बुलाकर लाइए. May I come in, sir? Yes, Camille. Assalamualaikum. Good evening, sir. Walaikum assalam. How are you, my son? How are you, my son? Fine, sir. Come here, my son. Whatever you have written an essay, is it true? Yes, sir. It's true. Hold on, my son. I can understand your problem. Now you won't be away from your grandparents for long. I promise you. Thank you, sir. Now you can go back to your class and study well. Thank you, sir. हेलो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या मोइन के पापा बात कर रहे हैं? जी हाँ। मैं मोइन का क्लास टीचर बात कर रहा हूँ। आपसे प्रिंसिपल सर मिलना चाहते हैं। क्या सर कुछ चिंता की बात है क्या? जी नहीं, आपको उनसे मिलना होगा आज ही आज। ठीक है सर, स्कूल की छुट्टी होने से पहले मैं स्कूल में पहुंच जाऊंगा। बस आप स्कूल आ जाइए। थैंक यू सर। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं भाई, ये समझ बात लग जाती है. अरे हाँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Walaikum assalam. Take a seat. इम्पोर्टेंट चीज़ें बस रखा हेलो जी कहिए सर, मैंने बात से कहा था हमारे स्कूल में एक नया रूल ये बनाया गया है क्या रूल बनाया गया है सर? कि आज के बाद आपके बेटे से हिंदी में नहीं बात कर सकते हैं. लेकिन सर मुझे तो इंग्लिश नहीं आती और मैं उर्दू मीडियम स्कूल से कर रहा हूँ। ये
मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। अगर आप भी कोशिश करोगे तो आप भी थोड़ी दिन में इंग्लिश सीख जाओगे। तब तक आप मुझ से नहीं बात कर सकते, क्योंकि रूल्स आर रूल्स, इक्वल फॉर ऑल। सही कहा, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बेटा उनसे आगे निकले, और हर पीढ़ी वक्त बाद सोच अलग हो जाती है, इसे जनरेशन गैप कहते हैं। मुझे एक बात बताइए, जब भी आपके माँ बाप किसी रिश्तेदार के पास जाते तो आपको भूखा छोड़ जाते? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अगर ऐसा भी हुआ होता तो मेरी माँ सबके लिए अच्छे पकवान बनाकर देती। तो अच्छा मुझे ये बताइए, जब भी आपको बुखार होता तो आपको इलाज भी नहीं करवाते होंगे? आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? जब मुझे बुखार होता तो मेरे माँ बाप खाना भी नहीं खाते और रात रात भर बैठकर मेरे सर की पट्टियाँ बनाते। तो अच्छा मुझे पूरा यकीन है कि जब भी फेस्टिवल होता आपके माँ बाप आपको कुछ नहीं लाते होंगे? नहीं सर, मेरी माँ इतनी सरल स्वभाव की थी कि वो हम सबके लिए वक्त से पहले कपड़े, मिठाइयाँ, ना जाने बहुत कुछ लाती, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं खरीदती। ना जाने सर, हम कुछ ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। आज हमने सभी बच्चों का टेस्ट किया था, जिसकी टॉपिक थी मेरे प्यारे दादा दादी या नाना नानी। जब मैंने आपके बेटे का पेपर देखा तो मुझे अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। ये देखिए, मेरे प्यारे दादा दादी जी, मेरे प्यारे नाना नानी जी, मेरा नाम मैंने अब शिक्षा शास्त्र करता हूँ और मैं अपने दादा दादी जी से बहुत प्यार करता हूँ। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरी दादी मुझे राजा और रानी की प्यारी कहानी सुनाती है और मेरे दादाजी मेरे पापा के बचपन के शरारती के बारे में बताते हैं। मेरे पापा बचपन में बिल्कुल मेरे जैसे हुआ करते, नटखट शरारती। जब भी खेल खेल में पापा गिर जाया करते और रोना लगते, फिर मेरे पापा उन्हें, मेरे दादाजी उनको अपनी गोदी में उठाकर झूला देते और प्यार करते, आंसू पोंछते। जब आज मेरे दादाजी को पापा के सहारे की जरूरत है तो वो अपनी जिम्मेदारी से पढ़ते पीछे हट रहे हैं। मेरी माँ हमेशा दादा दादी जी को कोसती रहती है, उस समय भी अभी खाना नहीं देती। जब हम फंक्शन में जाते हैं तो उन्हें खाना नहीं बनाती और उन्हें कहती है कि कहीं पर जाकर खाओ। मेरे पापा कहते हैं कि मेरे दादाजी पुराने जमाने के हैं, उनका रहन सहन गाँव जैसा है। यदि मैं बात करूँगा तो उनकी मेरी भी सोच की तरह हो जाएगी और मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। इसी कहने से मैं पिछले 1 साल से अपने दादा दादी जी के कमरे में नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप को उनसे बात करना, उनके पास जाना अच्छा नहीं लगता और मैं अपने दादा दादी के साथ रहना चाहता हूँ। उन्हें बहुत मिस करता हूँ। आपका मैं शिक्षा साहब। देखिए आपको इंसल्ट नहीं करना था। आपका बेटा होशियार विद्यार्थी और बच्चे तो कच्ची मिट्टी के होते हैं। हम माँ और बाप और उस्ताद जो रूप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अगर आपका बेटा कोई बड़ा हो जाएगा तो उनके बेटे के साथ ऐसा ही व्यवहार करवाएगा तो आपको कैसा लगेगा? मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है सर। जाने अनजाने मुझसे और मेरी बीवी से जो कुछ भी गलतियाँ होंगी मुझे माफ कर दीजिए सर। दादाजी को खीर भी बहुत पसंद है, वो भी बनवा लो। हाँ, खीर भी बनवा लो। जज़ाकल्लाहु खैर। Thought behind this kid. Thank you dears, thank you so much. By this act, I can say the generation gap is not a lack of understanding between generations, but a lack of communication. The generation gap is an opportunity to learn from each other, sign of progress and forward thinking. Give a warm welcome to our next performer, showing the importance of Astaghfar. May I please welcome grade 6 student Muhammad Nasrullah on the stage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
रहीम। मेरा नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आज मैं आप हज़रात के सामने गुनाह करने का वबाल और इस वबाल से दिल को पाक और साफ करने का तरीका बताने वाला हूँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला धब्बा लग जाता है। फिर गुनाह करता है तो एक और धब्बा उसके दिल पर लग जाता है। अब ये गुनाह करते करते ये दिल पूरा काला और सब आलूद हो जाता है। अब जब ये ऐसा होगा तो बताइए कोई अच्छी बात असर करेगी? हरगिज़ नहीं। अब इसको पाक को साफ करने का क्या तरीका है? बड़ा आसान तरीका है और वो ये है कि इसके लिए अपने दिल को पाक को साफ करने के लिए इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए। हम जब इस्तिग़फ़ार की कसरत करते रहेंगे तो ये दिल गंदगी से बिल्कुल पाक और साफ हो जाएगा। जैसे कि ये पानी हो गया है, तो इसीलिए हम सबको चाहिए कि अपने दिल को पाक और साफ करने के लिए इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We, the students of grade 5, 6, 7 are presenting this PPT, Building Bridges of Harmony. The positive influence of grandchildren in fostering unity between grandparents and parents in Islam. In Islam, grandchildren play a crucial role in fostering unity between grandparents and parents.
The final message from this PPT is the Quran is the most authentic book that everyone should read and understand. It is essential to go through it thoroughly. Similarly, the life of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam holds great significance. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एमएस का जो प्रोग्राम हुआ है, मैं बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ सभी लोगों को, और खासकर पेरेंट्स को और माँ और बहनों को जो अभी तक जो बैठे हुए हैं। यानी हमारा जो टाइम था 10 साढ़े 10 का टाइम था, लेकिन हम माफ़ी चाहते हैं कि थोड़ी लतीफ़ खान साहब की स्पीच वगैरह रही, थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा प्रोग्राम में लेट हो गया, इसलिए हम उसकी माफ़ी चाहते हैं। और मैं अपने लतीफ़ खान साहब मेमोरी कार्ड, जिनको मेमोरी कार्ड कहते हैं, जो अपनी बहुत ही ज़्यादा मसरूफियात के बावजूद जो जहीराबाद आए हैं, ये बहुत बड़ी हमारी खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि अक्सर एक एक साल का टाइम लेना पड़ता है। और मालिक का एहसान है कि उस शख्स में जो है 148 स्कूल को एक जगह हैदराबाद में बैठ के मेंटेन कर रहे, ये कोई मामूली बात नहीं है। हम यहाँ पर एक एमएस स्कूल चलाने के लिए कई पार्टनर्स रह रहे, कई जो है ये रह रहे, कई दबाव खराब हो रहा, लेकिन 148 स्कूल को अगर वो चला रहे हैं थ्रू आउट ऑफ इंडिया, तो कितनी बड़ी बात है। यानी अल्लाह ताला ऐसे लोगों को और इस हिंदुस्तान में पैदा करे, क्योंकि जो है इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज़ है तालीम। तालीम के बगैर हमारा जिंदा रहना बेकार है। यानी दीनी तालीम भी होना और दुनियावी तालीम भी। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, हमारे खान साहब का और उनके फर्जत का, जो यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ। और हमारे स्कूल के सदर हमारे आतिकुर रहमान साहब भी आए, लेकिन ज़्यादा मसरूफियत की वजह से वो चले गए। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पर आए, और खतीब इमाम मस्जिद फिरदौस के भी शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने भी तशरीफ लाए। मैं सभी लोगों का जो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, पेरेंट्स, बच्चे वगैरह, सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। इसका क्रेडिट दोस्तों मैं कहूँगा, सच तरीके से कहूँगा कि हमारे पूरे टीचर्स, मैं नाम नहीं लूँगा, प्रिंसिपल है, पूरे टीचर्स है, सभी लोग स्टाफ 35-36 लोगों का जो स्टाफ है, पूरे लोगों की मैं शुक्रगुजार हूँ जो इस प्रोग्राम में हर एक शिरकत करे। एक से प्रोग्राम नहीं होता, एक से मैनेजमेंट से होता है, टीचर से होता है, इसमें बच्चों का भी कोऑपरेशन रहता, पेरेंट्स का कोऑपरेशन रहता है, मैनेजमेंट का कोऑपरेशन रहता, सभी का कोऑपरेशन रहता। यानी सबका मिलने से जो है कोई सा भी जो है प्रोग्राम जो है अच्छी तरीके से सक्सेस होता। मैं खासकर जो है अपने मैनेजमेंट के मेंबर जो है जफर साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो पूरे एमएस के जितने भी जो है वहाँ के जो हालात है, वहाँ के हिसाब से जो है यहाँ पे स्कूल चलाने की कोशिश करते हैं। मैं जफर साहब का भी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और जो है साथ ही साथ हमारे असलम साहब जो डायरेक्टर है हमारे स्कूल के, जो इस साल जो है पूरा अच्छे तरीके से चला रहे हैं। असलम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो उनकी जो है मैनेजमेंट में जो है बेहतरीन तरीके से अपना पेश किया गया है। और मैं माजिद साहब और फसीह साहब को, इनका काम इतना रहता है कि शुरू से आखिर तक कौन सा भी काम रहता है ये दोनों कर लेते हैं। असलम साहब रहने दो, माजिद साहब रहने दो, फसीह साहब रहने दो, स्कूल का कौन सा भी बस का काम रहने दो, स्कूल का काम रहने दो, हर चीज़ में जो है इनका ताल्लुक बिल्कुल बराबर रहता है और कभी भी जो है पीछे नहीं हटते, बराबर स्कूल के लिए काम करते हैं। और मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए सभी हजरत का शुक्रिया अदा करता हूँ।
यानी ये जो अखलाक शो है, आप समझ रहे होंगे कि जो है ये अखलाक शो आपको बोर महसूस हुआ होगा, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, एनुअल डे वगैरह करके डांस के प्रोग्राम, ये वो प्रोग्राम करके जो है चकाचौंध बना लेते प्रोग्राम को। लेकिन अखलाक शो का मीनिंग क्या है? यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स का ये अखलाक क्या है? हम डॉक्टर, इंजीनियर, हर चीज बन रहे, लेकिन हमारे अखलाक नहीं जा रहे। हम पेरेंट्स से बात किस तरीके से करेंगे वो चले जा रहा, नाना नानी दादा दादी के साथ किस तरीके से चलेंगे वो चले जा रहा। यानी इसका अखलाक शो का रखने का मतलब ये कि बच्चों में और पेरेंट्स में शऊर पैदा हो, यानी वो किस तरीके से आइंदा जिंदगी गुजारे, क्योंकि यही है बिल्डर्स ऑफ द नेशन, यही बच्चे हैं आगे चल के जो है, यही जो है इस्लाम को फैलाने वाले, अपने देश को आगे करने वाले यही बच्चे हैं। मैं इसलिए पेरेंट्स का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ, जो पेरेंट्स का भी कोऑपरेशन स्कूल के लिए अच्छा रहा, बच्चों का कोऑपरेशन अच्छा रहा, हमारे जो है पूरे एम्प्लॉइज, जितने भी पूरे एम्प्लॉइज हैं, और ये जो ये मैनेजमेंट, ये जो क्या ये अपने अकाउंटेंट्स रहे, अपने स्कूल के जो भी रहे, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आइंदा भी इस स्कूल को इसी तरीके से तरक्की अता फरमाए और हमारे टीचर्स को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे सभी लोगों को उनकी सेहत अच्छी रखे, क्योंकि इंसान के लिए कुछ करना है तो सबसे बड़ी चीज़ सेहत है। सेहत के बाद ही जो है हर चीज़ है, एजुकेशन है, हर चीज़ है, सेहत अच्छी रहना जरूरी है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि सब पेरेंट्स को, टीचर्स को और बच्चों को, मैनेजमेंट को अल्लाह ताला सही सेहत दे और स्कूल के लिए बढ़ चढ़ कर काम करें और इस स्कूल की तरक्की के लिए पेरेंट्स, बच्चे सब मिलकर जो है इस स्कूल की तरक्की के लिए काम करें। मैं सभी पेरेंट्स का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर किसी चीज़ की भूल चूक हो गई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इंटायर टीचर्स की मैं तारीफ करूँगा, पूरे टीचर्स की तारीफ करूँगा, छोटे से लेके बड़े तक नाम लेना मुनासिब नहीं होता। बहुत देर हो गई, आपके टाइम के हिसाब से भी ज़्यादा टाइम लिया गया है, हम इसकी माफ़ी चाहते हैं, लेकिन पूरा जो है आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से इस्लामिक माहौल से ये शो चलाया गया, यानी अखलाक शो का मीनिंग क्या है ये समझिए। मैं सभी हजरत का शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी लोगों से मैं इंतजार करता हूँ कि वो अपने अपने बच्चों को जो है सही तरीके से लेकर जाए। बस जो है इंतज़ाम भी है जाने का, बस पेरेंट्स भी आए हुए हैं, वो लेकर जाए, बहरहाल आराम से जाए, किसी चीज़ का कोई ये नहीं है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि सबकी सेहत और स्कूल की तरक्की अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। Jazakumullah.